Hello everyone. We were doing chapter number 9 and 14 के exemplar. Question number 85 तक किए थे. Let us start with 86. Using suitable identities, evaluate the following. First part is 52 square. We can write 52 as 50 plus 2 whole square. Now, which identity we will apply here? A plus B whole square. That is equals to A square plus b square plus 2ab. 5 का स्क्वायर 25, so 2500 plus 4, 2 2s are 4, 5s are 20. So इसमें 204 ऐड करो, क्या है आपके पास 2704. इजी है 2704. So next करेंगे 49. We can write 49 as 50 minus 1. हमने उसका समझा सबट्रैक्शन लिखनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. 5 का स्क्वायर 2500 plus 1, 2 5s are 10, so 100. So 2500 में से 100 माइनस किया 2400 plus 1, so 2401. Next, how can you write 103? 100 plus 3. Apply the identity a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. 100 का स्क्वायर नंबर ऑफ जीरोस हो गई 4, 3 स्क्वायर 9, 3 2s are 6. सो हमने इसमें क्या ऐड करना है 609. 10609. क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. 98. हाउ कैन यू राइट 98? 100 minus 2. So apply the formula a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. 4 zeros are here, plus 4, 2 2s are 4. So 1,000, 4 में से 400 माइनस कर दो, 4 0, 10 minus 4 6. So 9604. अब डायरेक्टली कर सकते थे. 10,000 में से 400 माइनस किया 9600, राइट, प्लस 4, so 9604. क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए नेक्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करोगे, देन आई विल डू स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट 4 पार्ट्स. 1005 square. So how will we write 1000 plus 5? Apply the identity a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. 3 zeros थी 6 हो जाएंगी. 1 2 3, 5 square 25, 2 5s are 10, so 10,000. तो ये बन गया. इसमें क्या ऐड करना है हमने 10,025, राइट. तो ऐड करो क्या आया 10,100,25. So this will be the answer. ओके कोशिश करो जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन गलती नहीं करनी है. 995. We can write it as 1000 minus 5. A minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. Number of zeros will be 6 now. 5 square, 2 5s are 10, so 10,000. So 1 2 3 4 25, इसमें से माइनस करना है आपको 10,000. 5 2 0 0, 10 minus 1, so 990025. ओके नाउ नेक्स्ट. अभी तक हमने जो आइडेंटिटीज लगाई हैं a plus b whole square या a minus b square, a minus b whole square. Let us move to the next one. We can write 47 as 50 minus 3 and 53 as 50 plus 3. Now which identity we will apply here? A minus b, a plus b, that is equals to
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में आइडेंटिटीज को मेंशन करना है, मैं बार बार बोलती हूँ, ये नहीं है कि नहीं करो। 10 माइनस 9, सो यहाँ बच्चा 9 2 4 9 1, इजी वन। नेक्स्ट पार्ट 52 into 53. How can you write this? 52 as 50 plus 2 and this is 50 plus 3. Now in both the brackets, first term is same, x is same. So x plus a, x plus b. Identity mention करनी है, x square a plus b into x plus a into b. 2500, 2 plus 3, 5. 5 5s are 25, 2 3s are 6. So इसमें हमें क्या ऐड करना है, 256 कर दीजिए, 6 5 7 2. So 2756 is the answer. Okay, moving to the next one. 105 को we can write it as 100 plus 5. 95 को 100 minus 5. Simple. A plus b, a minus b, that is equals to a square minus b square. Number of zeros will be 4 now, minus 25. So 10 minus 5, 9 minus 2, 9 9. 9975. 104, 100 plus 4. 97 को कैसे लिखोगे, 100 minus 3, right? अब first term is same, but the second term is different. So x plus a, x plus b. So apply the identity, x square a plus b into x plus a into b. Now number of zeros will be 4. 4 minus 3, 1 into 100. 4 3s are 12. So 100 में से 12 minus करो, क्या बचा, 10 minus 2, 8. 9 minus 1, 8. 88. So इसमें ऐड कर दो 10088. जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए वैसे करने की कोशिश करो कि कम टाइम लगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. Okay, 101, 103. 100 plus 1, 100 plus 3. Again, first term is same, x is same. X plus a, x plus b. X square plus a plus b into x plus a into b. 100 square, number of zeros will be 4. 3 plus 1, 4 into 100. 3 ones are 3. So इसमें आपको क्या ऐड करना है, 403. So add कर दिया 10403. Next 98. 100 minus 2, 100 plus 3. First term is same, second is different. So we can write minus 2 as plus minus 2. To apply the identity, x plus a, x plus b. X square plus a plus b into x plus a into b. 100 square, 4 zeros हो गई, 3 minus 2 1, so 100 minus 6 94. तो इसमें ऐड कर दो 10,000 में 94, 10094. यहाँ तक क्लियर. Now next is 9.9. So we can write this as 10 minus 0.1. So a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. 10 square is 100. 1 का square 1 ही होता है, डेसिमल 2 digits पहले जाएगा now. So we will write it as 0.01. 2 tens are 20. 20 को 1 से करेंगे 20. एक digit पहले डेसिमल, so 1 गया 2. So 100 and 100 minus 2 is 98. 98 में ऐड करो 0.01, 98.01. देखो अगर आप पहले 100 को इसमें ऐड करोगे फिर 2 माइनस करोगे तो कैलकुलेशन विल टेक टाइम, ठीक है. सो 100 माइनस 2 पहले कर दो, 98 प्लस 0.01. सो वी विल गेट द आंसर एज 98.01. ऐसा नहीं है कि पहले उसको नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि कैलकुलेशन जिससे हमारी इजी हो जाए, टाइम सेव हो जाए. चले नेक्स्ट पार्ट पे चलिए.
9.8. How can we write 9.8? 10 minus 0.2. 10.2, 10 plus 0.2. Now in both the bracket terms are same with different sign. A minus B, A plus B. So A square minus B square. So 100, 2 का square 4. It will be 0.04. Decimal वाली subtraction addition ध्यान से करनी है. Now subtract करेंगे. 10 minus 4 is 6. यहाँ पे आ गया 9, 9, 9. So 99.96. रफ में करके देख लो डेसिमल वाली, गलत मत करना. रफ में कर लोगे कुछ ही सेकंड लगेंगे, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस में हमें टाइम जहां पे सेव हो सकता है वहां सेव करो, जहां टाइम को देना है क्वेश्चन को वहां दो. गलत करने की बजाय अगर आपको टाइम देना पड़े डेट इज मोर यूजफुल. चलो नेक्स्ट वन. 10.1, 10 plus 0.1, 10.2, 10 plus 0.2. Now first term is same, second is different. So x plus a, x plus b, x square plus a plus b into x plus a into b. 10 square will be 100. 0.3 को 10 से किया क्या आ जाएगा 3. 0.02. 103 में ऐड किया so 103.02. Next one. Next is a square minus b square, that is equals to a minus b, a plus b. Add करेंगे और subtract b. 14 minus 6 is 8, 4 minus 4 is 0, 3 minus 1 is 2. ये आया 20.8, right? अब इन्हें ऐड कीजिए. 6 plus 4 is 10, 5 plus 4 9 and 1 10, 3 and 1 4 and 1 5. So 208 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, then apply decimal. 8 5s are 40, 5 2s are 10, so 1040. 50 से किया तो 10 उसकी भी आई. डेसिमल कितने डिजिट बाद जाएगा 50.0 मींस 50, तो एक प्लेस बाद ही डेसिमल जाएगा. So 1040 is your answer. You can write 50.0 as 50 also. ठीक है. अगर आपने इसका 0 लेना है साथ में तो यहाँ एक 0 और आएगा, तब 2 डिजिट पहले डेसिमल जाएगा. तो हमने ये 0.0 को हटा दिया, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया 10400. अब एक डिजिट बाद ही डेसिमल है तो 1040. क्लियर? यहाँ तक. डेसिमल वाले में बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो रफ में सॉल्व कर लो डेसिमल वाले में. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. ओके, a square minus b square again. So apply the identity. A minus b, a plus b. कीजिए. Subtract. 13 minus 7 is 6. यहाँ बचा 8. 6 minus 3. 7 plus 3 10, 9 plus 1 10, 6 plus 3 9 and 1 10. So 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 38600. तो डेसिमल एक डिजिट बाद, तो वी विल गेट द आंसर एज 3860. नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट दोनों कीजिए तब मैं करती हूँ. स्टार्ट कीजिए. अगेन सेम ही लगेगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दोनों पार्ट्स में. ए माइनस बी, ए प्लस बी. कैलकुलेशन आप करेंगे उसके बाद मैं करूंगी, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट स्टेप लिख रही हूँ दोनों में. ए माइनस बी, ए प्लस बी. कीजिए कैलकुलेशंस क्विकली एवरीवन. राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स आफ्टर डूइंग. ओके, सब्ट्रैक्ट करो. 7 minus 3 4, 9 minus 0, 7 plus 3 10 and 9 plus 1 10. So 94 को 10 से करो 940. डेसिमल आएगा एक प्लेस बाद. So answer will be 94. नेक्स्ट इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए. 12 minus 8, 12 minus 6, 8 plus 2, 6 plus 3 9 and 1, 1 plus 1. 4 2s are 8, 6 2s are 12, 12800. करेक्ट आंसर सबके यहाँ तक. नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें देन.
चलिए अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाई द आइडेंटिटी. कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. नंबर वन. नंबर टू, कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 9 माइनस 1, 13 माइनस 6, 2 माइनस 1, 9 plus 1, 6 plus 3, 9 and 1, 3, 1, 4 and 1, 5. 178 को पहले 5 से करो. 8 5s are 40, 4 is the carryover. 35 plus 4, 39, 5 plus 1, 5 and 3, 8. And 2 zeros are there for 500. So 89000. Next one, do the next one. Again apply the same identity. A minus B, A plus B. These are for your practice. जितने ज्यादा करोगे उतने एग्जाम में गलती होने के चांसेस कम होंगे. किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए. 9 माइनस 1, 12 माइनस 7, 6 माइनस 2. A minus B, A plus B. 9 plus 1, 7, 2, 9 and 1, 10. So it will be 1000. Simply multiply 458 into 1000. 458,000. क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 86 बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. सो 4 आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में पढ़ी हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर की है, माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. इन चारों को यूज करते हुए हमने कल अलजेब्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. आज हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज के स्क्वायर्स को सॉल्व किया है यूजिंग आइडेंटिटीज. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास 8th में और 4 आइडेंटिटीज आपको ऐड हो जाएंगी, तो हम वो पढ़ेंगे क्लास 9th में. सॉरी. चलिए तो पहले ये 4 अच्छे से करो, ताकि क्लास 9th में जब जाएं तो अगली आइडेंटिटीज आए तो पिछली भूली ना हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन द फॉलोइंग टर्म्स. इजी वन. फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन राइट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. सो राइट ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट. minus 18a square 108a. Second part is 3x square y 18xy square minus 6xy. अगर मैं डायरेक्टली देखूं फैक्टर्स तो मुझे तब भी पता लग जाएगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा है. चलो एक ग्रेटेस्ट कॉमन पहले डायरेक्टली निकालते हैं. दोनों में एक ही टर्म है. मिनिमम पावर ऑफ दिस इज 1, तो a तो आएगा. अब 18 एंड 108 क्या किसी एक टेबल पे जाते हैं? क्या 18 के टेबल पे 108 आता है? यस और नो? 6 से करके देखो, आता है ना? 8 6 are 48, 108. So 18a will be the greatest common factor. ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे शो भी करना है. So 18 के फैक्टर्स 2 9s are 9 को लिखा 3 into 3 a into a. 108 2 पे जाएगा 54, फिर 2 पे गया 27, 3 3s are 9, 3s are 27 into 8. सो कॉमन फैक्टर्स को कीजिए सर्कल. 2 बार 3, 1 बार 2. 3 3s are 9, 2s are 18. So 18 is the greatest common factor. Similarly अगर इसमें निकालें 3 18 6, तीनों 3 पे जाते हैं. x तीनों में कॉमन है. मिनिमम पावर इज 1. यू कैन चेक लाइक दिस कि आपने गलती तो नहीं की. y तीनों टर्म्स में आ रहा है. मिनिमम पावर इज 1. सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 3xy. राइट. सो 3x स्क्वायर 2 बार आ गया. y 18, 3 6 are 18, 3 3s are 9, 2s are 18. x into y minus 6 minus 1 into 3 into 2. x इंटू वाई. सर्कल कर लो. जो कॉमन है y सब में है, x सब में है एंड 3 सब में है. सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 3xy. मूविंग टू द थर्ड पार्ट. ओके, क्या मैं इसको डायरेक्टली करवा दूं? आप लोग समझ जाओगे. जिसके ज्यादा बड़े होंगे उसके हम चेक कर लेते हैं. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. 2xy. अब देखो 2 दो टर्म में है, तीसरी में तो नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा. x दो टर्म में है, तीसरी में नहीं है, तो x इज ऑल्सो नॉट कॉमन.
y is the only term जो तीनों में है and minimum power is 1, so greatest common factor will be y. Okay, fourth part, l की टर्म सब में है, yes, minimum power is l की पावर 1, m की टर्म सब में है, minimum power is 1, n की टर्म सब में है, minimum power is 1 here, so greatest common factor will be lmn. सिर्फ आपको फैक्टर्स को स्प्लिट करके लिखना है, जो कॉमन है उनको सर्कल करो एंड गेट द आंसर. फिफ्थ पार्ट, अब 7 इज द मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू. 21 में भी 7 आता है, 49 में भी, तो 7 इज कॉमन. p की टर्म सब में है, मिनिमम पावर इज 1. q की टर्म भी सब में है, मिनिमम पावर इज 1. r की टर्म भी सब में है, मिनिमम पावर इज 1. सो आंसर विल बी 7pqr. ओके, चलिए नेक्स्ट पे. Q सब में नहीं है, नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं. R सब में है, 1 2 3 सब में है R. X सब में नहीं है, दो टर्म में है, इसमें नहीं है. Y तीनों में है, मिनिमम पावर इज 1, सो R Y. अगर 1 मार्क में आता है तो यू कैन डू इट डायरेक्टली, अगर एमसीक्यू में भी आता है ऑल्सो यू कैन डू डायरेक्टली. नाउ 3 6 12 तीनों 3 के टेबल में आते हैं, सो 3 विल बी द कॉमन फैक्टर. x की मिनिमम पावर तीनों में है, x 1. y तीनों टर्म में है, यस, मिनिमम पावर इज 1. z तीनों में है, यस, मिनिमम पावर इज 1, सो 3x y z. नेक्स्ट दिस पार्ट, 63 9 15 60. ओके, अब 9 7 63 होता है, लेकिन 9 से ना तो 60 डिवाइड होता है ना 15 डिवाइड होता है, तो पहले हम न्यूमेरिकल पार्ट्स को ही स्प्लिट कर लेते हैं. 3 5 15 होता है, 3 4 into 5, 5 4 20, 3 60, साथ में -1 लिख देते हैं. -9 -1 into 3 into 3, न्यूमेरिकल टर्म कॉमन निकालने के लिए 9 7 63. अब देखो 3 सब में आ रहा है, सो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 इज कॉमन. ओके, p की टर्म सब में है, मिनिमम पावर इज 1. a की टर्म 2 में है तो नहीं कॉमन होगा. r की टर्म सब में है, मिनिमम पावर इज 1. s की टर्म सब में है, मिनिमम पावर इज 1, सो 3prs. Now next this one, 13 square is 169, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कॉमन आया 13. x की टर्म दोनों में है, मिनिमम पावर इज 1. y की टर्म दोनों में है, मिनिमम पावर इज 1. सो लाइक दिस यू कैन डू, बट आपको अगर एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में तो आपको पूरा शो करके दिखाना है. नाउ 11 एंड 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें x स्क्वायर की टर्म है, इसमें y स्क्वायर की कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1. So greatest common factor here is 1. Clear to all of you? Is there any doubt in this question? No? Moving to the next one then. Okay. Factorize the following expressions. Okay. अब हमें factorize करना है. चलिए start करते हैं. 6ab write down the first, second and third statement quickly. 6ab plus 12bc. 6ab plus 12bc. सेम इसी तरह से फैक्टराइज होगा. 6 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, b दोनों में कॉमन है. फर्स्ट टर्म के साथ क्या बचा, a. 6 2s are 12, तो b ऑलरेडी बाहर है, यहाँ बचा c. सो इसके फैक्टर्स हो गए 6b एंड a plus 2c. सो ये हमने फैक्टराइज कर दिया. सेकेंड पार्ट, -xy minus ay. What is the common here? y. You can take negative common as well or not, it's your choice. चलिए let's start. -y is common here, so bracket में क्या बचा, x plus a. So these are the factors of this question. Okay, moving to the next part. अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x सब में आ रहा है एंड मिनिमम पावर इज 1, तो x इज कॉमन. फर्स्ट टर्म में क्या बचा, a. x की पावर 3 में से एक पावर बाहर ले ली तो 2 माइनस
बी एक्स स्क्वायर में से एक एक्स की पावर बाहर ले ली प्लस सी, एक्स ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट वन, एल एम और एन तीनों टर्म में है, मिनिमम पावर चेक कीजिए, एल की 1, एम की 1, एन की 1, दिस इज द मिनिमम पावर। एल स्क्वायर 2 में से एक बाहर आ गया, एक बचा, एम स्क्वायर 2 में से एक बाहर आ गया, एक बचा, एन ऑलरेडी बाहर है, माइनस एल बाहर है, एम 2 थे, एक बचा, एन 2 थे, एक बचा, माइनस एल 2 थे, एक बचा, एम एक ही था, बाहर है, एन 2 थे, एक बचा। तो दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट वन 3 6 15, तीनों 3 के टेबल में जाते हैं, पी क्यू आर सब में है, नो, it is only in the R which is in all the terms. So minimum power is R. यहाँ क्या बचा, PQ minus 3 2s are 6, PQ R minus 3 5s are 15, 5 R. ठीक है, नेक्स्ट वन, ओके एक्स वाई सब में है, मिनिमम पावर इज 1, क्या बचा, 3 में से एक गए, 2 2 में से एक गए, 1 प्लस 2 में से एक गए, 1 में से 2, 3 में से एक गए, माइनस एक्स बाहर है, वाई की बच गई 3, ये एक्स वाई पूरा बाहर है, यहाँ बचा 1। अब ऐसे इसमें से भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, चलो एक बार करके देखते हैं। पहले 2 में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा वाई, लेकिन अगली 2 में से एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई क्यूब, ये देखो ये वाली ब्रैकेट सेम होनी चाहिए लेकिन सेम नहीं है, तो ये इसी तरह से होगा, जब ब्रैकेट में सेम होती है तब हमारे पास उस तरह से फैक्टराइज होगा जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके यहाँ पे सब में एक्स वाई है, ओके मिनिमम पावर एक्स की 1 है, वाई की 1 है, 4 10 16 2, 2 के टेबल में सारे जाते हैं, 2 2 जार 4, एक्स ऑलरेडी बाहर है, बचा एक वाई, 2 5 जार 10, एक्स बाहर है एक, माइनस 5x, 2 8 जार 16, एक्स वाई, 2 एक्स वाई पूरा बाहर है तो 1। नेक्स्ट 2 3 5 1, एक टेबल पे नहीं जाते, ए सब में है, मिनिमम पावर इज 1, यहाँ बचा 2, ए की 3 माइनस 1 2, माइनस 3, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया, बी बचा 5, ए बाहर आ चुका है, बी स्क्वायर, ए बाहर आ चुका है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 63 9 15 60, अभी ऐसा हमने प्रीवियस जो फैक्टराइज किया था उसमें भी ये क्वेश्चंस थे आई थिंक, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा था, राइट, दिस इज द 9th पार्ट। ओके चलिए, पी क्यू आर एस सब में है, मिनिमम पावर चेक कीजिए, पी है, क्यू की एक है, आर की एक है, एस की एक है, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 21, पी क्यू आर तीनों की दो दो पावर थी, एक एक बाहर आ गई, एस ऑलरेडी बाहर है, 3 3s are 9, पी एक था, क्यू आर एस दो दो थे, 3 5s are 15, पी दो थे, क्यू एक था, 3 2s are 6, P, Q and S. ओके क्लियर यहाँ तक। 10th पार्ट, 24 x square y z cube minus 6x y cube z square plus 15 x square y square z minus 5x y z। ओके चलो मैं थोड़े से पार्ट के स्टेटमेंट लिख देती हूँ पहले so that we can continue। 11th is a cube plus a square plus a plus 1, lx plus my plus mx plus ly,
13th a cube x minus x raised to power 4 plus a square x square minus ax cube. Next is 14th part, 2x square minus 2y plus 4xy minus x. जब तक आप लोग करना स्टार्ट करेंगे, y square minus 2xy minus 4yz 2ax square plus 4axy plus 3bx square plus 2ay square plus 6bxy plus 3by square. चलिए कंटिन्यू करो. ओके चलिए स्टार्ट कीजिए. 10th पार्ट स्टार्ट करेंगे. इज देयर समथिंग कॉमन? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि चारों किसी एक टेबल पे नहीं जाते. x y z is common, so 24 xz square six y square z 15 xy minus 5. अगर मैं देखूं इन दो को अगर कॉमन करके कोशिश करूं कि ये दोनों 5 पे जाते हैं, ये दोनों 6 पे जाते हैं, सो लेट्स चेक वंस कि कुछ कॉमन आता है. 6 के टेबल पे गए, एक्स वाई जेड इज कॉमन, राइट? जेड की स्क्वायर इज कॉमन. ओके 6 4 आर 20, एक्स वाई कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, 6xy कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर आ गया. ओके यहाँ पे आ गया 5xyz कॉमन, 5 3 आर 15 xy minus 1. तो ब्रैकेट सेम नहीं है, सो दीज आर नॉट कॉमन. ये सिर्फ इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि ये उससे क्यों नहीं हो रहा, राइट? क्योंकि उसमें दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए तब होगा. अब देखो, अब मैं इन दो टर्म्स को लू तो a स्क्वायर इज कॉमन a प्लस 1 और पिछली दो में भी a प्लस 1 है. नाउ वन ब्रैकेट इज कॉमन हियर. So what we will get, a plus 1 as the one factor and other factor will be a square plus 1. इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1, right? So next, moving to the next one. अगर मैं ले लेती हूँ lx और my को एक साथ लेती हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. x वाली टर्म को x के साथ कॉमन लू तो इन दोनों को लिया, so x इज कॉमन, ब्रैकेट में बचा l प्लस m. दो टर्म्स को लिया, y इज कॉमन, m plus l plus m या m plus 1 and the same thing, so this is a common factor and the other factor will be x plus y. तो आपको क्वेश्चन को देख के करना है कि कुछ कॉमन फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा. आपको स्टेटमेंट देख के समझ आ जाएगी. ओके चले नेक्स्ट पार्ट पे. अब अगर इसमें देखूं, x कॉमन निकाला सब में, a क्यूब माइनस एक्स क्यूब a स्क्वायर x माइनस a एक्स स्क्वायर, यही बचा, राइट? अब अगर मैं इनको थोड़ा सा अरेंज करूं, कुछ कॉमन निकल जाए तो चेक कर लेते हैं. a क्यूब प्लस a स्क्वायर x को मैंने एक साथ रख लिया क्योंकि इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर. चेक करो. अब पहली दो में से a स्क्वायर इज कॉमन, क्या बचा? a प्लस एक्स, राइट? इन दोनों में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा x प्लस a. सो x प्लस a, दिस इज द कॉमन फैक्टर. तो x एक बाहर था, एक फैक्टर आ गया x प्लस a
दूसरा आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, आप लगा सकते हो, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा